اگر اپنا ہی پیسہ لگانا تھا تو شیر کی ضرورت کیا تھی؟ بس ایک بار مجھے امریکن سرزمین پہ اترنے دے، پھر دیکھے گا کس طرح سے ڈالروں کی بارش ہوتی ہے۔ عاشق ہو پاگل ہو جاؤ گے میری طرح۔ پہلے آپ کی طرح ہی تھا، اب عاشق بن گیا۔ اب تم دیکھنا کامیابی کی وہ سیڑھیاں چڑھو گے کہ کوئی تمہارے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔ وہاں اندر میرا باپ تڑپ رہا ہے اور یہاں سب کے سب لاپرواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی اولاد کے جانے کا ماتم مناؤں یا تمہارے ڈھیر کا؟ السلام علیکم کاکا صاحب کی طبیعت اب بھائی رکشا، تم یہاں کیوں آئی؟ بابا آپ کا برتھ ڈے ہے نا آج، تو گھر جا رہی تھی، یہ ہیپی برتھ۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ میں کاکا صاحب کو دیکھنے آئی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، میں دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ تم کتنی سگی ہو ہماری پتہ ہے مجھے، بہانے سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہانہ نہیں بنا رہی، مجھے اپنوں کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھو ان کے ساتھ تشریف لائی ہیں یہ۔ السلام علیکم۔ ایک بات بتاؤ، اگر ہر گھڑی ہر جگہ اسی کے ساتھ گھومنا ہے تو نکاح کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ میں تو کاکا صاحب کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ میں ویسے بڑی بے شرم ہو تم، محبوب کے ساتھ ہی آ گئی ہسپتال۔ زبان کو کنٹرول کریں، ہسپتال میں کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ میں کیوں اپنی زبان پہ کنٹرول کروں؟ یہ جو تمہاری بیٹی ہماری ناک کٹواتی پھر رہی ہے، بے شرم کہیں کی، ہسپتال بھی پہنچ گئی ہمارا تماشا بنانے۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو ڈرامہ شیر کی لیٹسٹ ایپیسوڈ نے کہانی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فجر کے لاکھ منع کرنے پر بھی شیر زمان ہسپتال کے چکر کاٹنے پر مجبور ہے اور وہ ہسپتال میں پاگلوں کی ٹیم میں پھر سے شامل ہو گیا۔ دوستو ہم نے دیکھا کہ ایک پاگل شیر زمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی پاگل ہو جو اس ہسپتال میں گھوم رہے ہو؟ تو شیر زمان کہتا ہے اس پاگل سے، جی ہاں میں بھی پاگل ہوں اور دیوانہ بھی، اور بڑی ہی حسرت سے ڈاکٹر فجر کی طرف دیکھتا ہے جو کہ خود کسی پاگل کا معائنہ کر رہی ہوتی ہیں۔ دوستو یہ بات سچ ہو گئی، میں بھی پاگل، میرا دل بھی پاگل۔ فرینڈز یہ کیسا پاگل ہے جو اپنی محبوبہ کو روز بروز اس کے باپ کے ہاتھوں ذلیل کرواتا رہتا ہے اور خود کو عاشق بھی کہتا ہے۔ خیر دوستو یہ ڈرامہ ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو لیٹسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری سناؤں۔ اور فرینڈز ہم دیکھتے ہیں کہ شیرزمان دن میں ہی تارے دیکھ رہا ہے اور جاگتے ہوئے ڈاکٹر فجر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگلا سین تو اور بھی زیادہ مزیدار ہے۔ آہد جو کہ شیرزمان کا بہنوئی ہے، وہ بھی شیرزمان کی طرح دن میں ہی امریکہ جانے کے خواب بن رہا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں امریکہ چلا جاؤں گا تو ایلون مسک کو بھی ہرا کر آؤں گا۔ فرینڈز مجھے یہ لگتا ہے کہ آہد امریکہ میں ہی کسی فراڈیے کے ہاتھ چڑھ جائے گا یا پھر شیرزمان کی کسی سازش کا شکار ہوگا اور پھر برباد ہو کر منہ لٹکاتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر اترے گا، جس پر اس کا باپ بدر اور بھائی فہد جوتوں سے استقبال کریں گے۔ دوستو چچا بدر جو کہ پہلے ہی لالچ جیسی بیماری کا شکار ہے، وہ آہد کی ڈالرز والی بات کو سیریس لیتا ہے اور وہ بھی اس ڈرامے میں جتنے بھی پاگل ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرینڈز اس ایپیسوڈ میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ شیرزمان جو کہ آہد اور چچا بدر کے خون کا پیاسا ہے اور وہ آہد کو حالہ شہری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک دن بہت بڑے بزنس مین بنو گے، تمہیں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے اب تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ فرینڈز یہاں مجھے شیرزمان کی کوئی سوچی سمجھی چال لگ رہی ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ شیرزمان ایک ایکشن ہیرو کی طرح انٹری مارے گا اور ایک ہی جھٹکے میں سلطان راہی کی طرح اپنے چچا اور کزنوں کو نیست و نابود کر دے گا، مگر یہاں پر شیرزمان شطرنج کی چال چلنے والے ہیں۔ دوستو شیرزمان اب ان تینوں باپ بیٹوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کا بندوبست کر رہا ہے تاکہ جب یہ تینوں لوگ آپس میں لڑ کر ہلکان ہو جائیں گے
तो फिर मैं इन पर अपने मरहूम बाप जमान का बदला लूंगा और एक ऐसा हमला करूंगा जिससे ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों हम इस एपिसोड में मजीद देखते हैं शेरजमान अपने मकसद में कुछ न कुछ कामयाब भी हो गया है। आहद और फहद के पैसों की वजह से लड़ते हुए नजर आते हैं। फहद कहता है कि तुम मुझसे बड़े जरूर हो, मगर इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है कि तुम इतने ही बड़े बेवकूफ भी हो। तुमने हमारी सारी बेईमानी से इकट्ठी की गई दौलत को लगा दिया, तो यहाँ पर शेर का क्या एहसान है? हम चाहते थे कि तुम शेर का पैसा लगाते, अगर नाकाम भी होते तो शेर को नुकसान होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काका साहब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं और साथ ही साथ अस्पताल के बेड पर वेंटिलेटर पर लेटे हुए अपनी जमीनों का हिसाब भी लगा रहे हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं। फ्रेंड्स मजाक कर रहा था, काका साईं अब मरने वाले हैं और फूफी ताज हमेशा की तरह अस्पताल में भी ड्रामा क्वीन बनी बैठी हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे और लड़ भी किससे रही हैं? एक रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ से। अब भला डायरेक्टर साहब को चाहिए था कि कम से कम फूफी ताज को ये तो बता देते कि ये डायलॉग डॉक्टर के सामने मारना था। खामखा टेलीफोन ऑपरेटर की जान की दुश्मन बन गई। दोस्तों अगर फूफी ताज का करैक्टर ऐसी हरकतें ना करे तो इसको ताज बीबी कौन कहेगा? एक तरफ तो वो अपने बाप के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ इसके मरने पर मातम मना रही है। हालांकि ये बात सच है कि फूफी ताज को सिर्फ ये टेंशन है कि जो जायदाद काका साहब ने इसके भतीजे और भाइयों के नाम की है वो अपनी ही जिंदगी में मेरे नाम करके मरें। मगर दोस्तों इस बार फूफी ताज मुंह की खानी पड़ेगी और काका साईं जमीनों का हिसाब अपने दिल में ही लेकर फरार हो जाएंगे। फ्रेंड्स कहानी को अगर थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए तो अब फहद और इसके बाप बदर और भाई आहद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आहद का बच्चा जो कि जाया हो चुका है और अब इसकी बीवी जो कि पहले इसके किरदार पर शक करती थी अब इसके साये से भी डरती है और बेइंतहा नफरत करती है। दोस्तों ऐसे पैसे का क्या करना जो इंसान की जिंदगी में से सुकून को गायब कर दे। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह आहद और फहद चचा बदर ये सोच रहे थे कि हम इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शेर को नाको चने चबवाएंगे और इसको इसकी वालिद की तरह मारकर इसके घर और जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और इसके और इनकी बहनों को तलाक देकर घर से निकाल देंगे, क्योंकि शेर एक वह शख्स है जो इन लालची बाप बेटों की ख्वाहिशात के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। बड़ा भाई आहद फहद से कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे नाम का बिजनेस करूंगा, फिर देखना तुम कितनी तरक्की करते हो। और शेर की मां को शक हो जाता है कि ये लोग इतने कामयाब कैसे हो रहे हैं जबकि चचा बदर और इसके बेटे शेर जमान के टुकड़ों पर ही पलते हैं, फिर भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जिस पर शेर जमान सर हिला देता है। हालांकि शेर जमान सब कुछ जानता है कि इसके चचा बदर इनके बेटे करप्ट हैं और ये शेर का बाप भी जानता था कि मेरा भाई मेरी पीठ के पीछे कारोबार में से पैसे चोरी करता है और हमें दिन रात लूट रहा है। मगर पता नहीं ड्रामा डायरेक्टर कौन सी बात सोचकर बैठे हैं कि अभी शेर को और लुट जाने दो, फिर इनको बेनकाब करेंगे। दोस्तों हम इस एपिसोड में देखते हैं कि फजर का बाप इसे कहता हुआ नजर आया कि मुझे तुम पर जब भी तरस आता है और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि जो भी फजर कर रही है तो मेरी बेटी, तो तुम कोई ऐसी हरकत कर जाती हो जिससे मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आया तब ही मुझे शेर जमान तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि जो औलाद अपने बाप को एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार ऐसा करेगी। जिस पर फजर की थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट जाती है और वो शेर जमान पर टूट पड़ती है कि तुम कितने ढीठ इंसान हो, मेरे लाख मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। जिस पर शेर जमान इसे कहता है कि फजर तुम ये कैसी बातें कर रही हो और हमारी मोहब्बत का क्या होगा। तो फजर बड़ी ही बेरहमी से कहती है बाढ़ में गई हमारी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरा बाप है जिसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हें पांव तले रोंद कर जा सकती हूँ। फजर शेर से कहती है मैं तुम्हारे
आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से इतने दूर चले जाओ कि तुम्हारा साया भी मुझ पर ना पड़े। तो दोस्तों बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजता है और शेरजमान की आंखों में आंसू डांस करते हुए निकलते हैं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं, मगर क्या करें, आंसू तो आंसू होते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि भाभी लाख समझाने पर भी फूफी ताज अपनी महरूमियों का बदला अपने भाइयों और डॉक्टर फजर से अभी तक ले रही है। दोस्तों फूफी ताज का करैक्टर बहुत समझने वाला है। मैं और आप ये सोचते होंगे कि फूफी ताज शेर जमान के खानदान से दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ी समझने की बात है। फूफी ताज एक जमाने में शेर के बाप से मोहब्बत करती थी और वो जमान फैमिली का बहू बनना चाहती थी, मगर दोनों खानदानों में जमीन के झगड़े पर लड़ाई हो जाती है और ताज भी बेचारी कंवारी ही रह जाती है। अब फूफी ताज फजर और शेरजमान का रिश्ता नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से जमीन और जायदाद नहीं बल्कि वो मोहब्बत से इतनी नफरत करने लगी है कि अब वो दो मोहब्बत करने वालों को एक साथ नहीं देख सकती। वो चाहती है कि जिस तरह मैंने जमान की जुदाई में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, बिल्कुल इसी तरह अब डॉक्टर फजर भी अपनी मोहब्बत से महरूम रहेगी। हालांकि वो इसके दुश्मन की बेटी नहीं, उसके भाई की बेटी है। फ्रेंड्स ताज बीबी एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहती है। एक तरफ वो शेर जमान जो कि डॉक्टर फजर की मोहब्बत में पागल है, इसे तड़पाती रहेगी, और दूसरी तरफ वो अपने भाइयों से हसद करती है। इसलिए इनकी औलाद फजर को जिंदगी भर कंवारी रहने की सजा दिलवाएगी। मगर दोस्तों ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जहां तक मेरी प्रेडिक्शंस हैं अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाएगी ही। जी हाँ दोस्तों, हमने नोटिस किया होगा कि फजर का बाप इतनी बेइज्जती और जिल्लत उठा चुका है कि वो एक बार मरने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अब वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा या फिर डॉक्टर फजर की तरफ से दी गई जिल्लत की वजह से इसे हार्ट अटैक होने वाला है, जिससे डॉक्टर फजर की दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, जो कि सिर्फ इसके बाप की रजामंदी पर टिकी थी। दोस्तों मुझे लगता है कि डॉक्टर फजर ये सोच सकती है कि मेरा बाप शेरजमान की वजह से दुनिया से चला गया और इसने मुझे माफ भी नहीं किया। अब मैं अपने बाप की खुशी को पूरा करने के लिए शेरजमान का खून बहाऊंगी और अपने बाप की रूह को खुश करने के लिए मैं शेरजमान के खानदान को तबाह कर दूंगी। दोस्तों हमें इस ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो हमें ये सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। आहद फाहद और बदर के किरदारों से साफ जाहिर होता है कि जब इंसान दौलत और ताकत के पीछे अंधा हो जाए तो वो अपने ही खानदान के खिलाफ साजिशें करने लगता है, भाई भाभी का दुश्मन बन जाता है और सुकून की बजाय परेशानी और बर्बादी अपने हाथ से खरीद लेता है। पैसा अगरचे जरूरी है, मगर ये सुकून, इज्जत और रिश्तों की मोहब्बत को कभी नहीं खरीद सकता। दोस्तों दूसरा बड़ा सबक हमें मिलता है, मोहब्बत और जिद के फर्क से मिलता है। शेरजमान की मोहब्बत फजर के लिए जुनून की हद तक है, मगर इस मोहब्बत में जिद और अना भी शामिल है। वो बार बार फजर को मना करने के बावजूद इसके घर इर्द गिर्द घूमता रहता है। असल मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरे की खुशी को अपनी ख्वाहिश से मुकद्दम रखा जाए। अगर मोहब्बत में जबरदस्ती या जिद शामिल हो जाए तो वो मोहब्बत ही नहीं रहती बल्कि खुद गर्जी बन जाती है। दोस्तों तीसरा सबक औरत की बेबसी और इसके रिश्तों की पेचीदगी से सामने आता है। डॉक्टर फजर अपने बाप की रजामंदी पर इन्हिसार करती है। वो चाहे शेरजमान को पसंद करे या ना करे, मगर बाप की इज्जत, इसके एतमाद को खोने का खौफ इसके सारे फैसलों पर हावी है। ये हमें बात सिखाता है कि फैमिली के दबाव और माशरती रिवाज बाज औकात इंसान की जाती खुशियों को कुचल देते हैं। फूफी ताज का किरदार से हमें यह हकीकत सामने मिलती है, पिछली महरूमियां इंसान की शख्सियत को जहरलूद बना सकती हैं। अपनी पुरानी नाकामी और टूटी मोहब्बत का बदला वो आने वाली नस्लों से लेती है। ये रवैया हमें सबक देता है कि माजी के दुखों को साथ लेकर चलना न सिर्फ इंसान को तलख बना देता है बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद कर देता है। बेहतर यह है कि इंसान माजी के जख्मों को बुलाकर आगे बढ़े, वरना वो खुद भी सुकून नहीं पाता और दूसरों को भी चैन नहीं लेने देता। दोस्तों इस कहानी से एक और अहम सबक मिलता है कि साजिश और धोखा वक्ती तौर पर फायदामंद हो सकते हैं मगर आखिरकार नुकसान ही करते हैं। बदर और इसके बेटे वक्ती तौर पर दौलत और बिजनेसमैन कामयाब दिखाई देते हैं,
मगर अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के खिलाफ डरे हुए हैं और अजीब अजीब बातें सोच रहे हैं। नतीजा यही निकलता है कि आखिर में ये लालच बददियानती उन्हें तबाही की तरफ ले जाता है। फ्रेंड्स, आखिर में ये सबक मिलता है कि इंसान की असल कामयाबी सुकून, ईमानदारी और रिश्तों की हिफाजत में है। पैसा, शोहरत या ताकत इंसान को वक्ती खुशी दे सकते हैं, मगर अगर दिल में सुकून ना हो और रिश्ते साथ ना हो तो सब कुछ बेकार रह जाता है। जी तो दोस्तों, आपको ड्रामा शेर का लेटेस्ट रिव्यू सुनकर कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने भाई अदन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुश रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपको डॉक्टर फजर की कसम। गुड बाय, सी यू अगेन। तो दोस्तों, ड्रामा शेर की लेटेस्ट एपिसोड ने कहानी को बदल कर रख दिया। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि डॉक्टर फजर के लाख मना करने पर भी शेर जमान अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर है और वो अस्पताल में पागलों की टीम में फिर से शामिल हो गया। दोस्तों, हमने देखा कि एक पागल शेर जमान से पूछता है कि क्या तुम भी पागल हो जो इस अस्पताल में घूम रहे हो? तो शेर जमान कहता है इस पागल से, जी हाँ, मैं भी पागल हूँ और दीवाना भी, और बड़ी ही हसरत से डॉक्टर फजर की तरफ देखता है जो कि खुद किसी पागल का मुआयना कर रही होती हैं। दोस्तों, ये बात सच हो गई, मैं भी पागल, मेरा दिल भी पागल। फ्रेंड्स, ये कैसा पागल है जो अपनी महबूबा को रोज बरोज इसके बाप के हाथों जलील करवाता रहता है और खुद को आशिक भी कहता है। खैर दोस्तों, ये ड्रामा है और मेरी मजबूरी है कि मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड की स्टोरी सुनाऊं। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि शेरजमान दिन में ही तारे देख रहा है और जागते हुए डॉक्टर फजर के ख्वाब देख रहा है। अगला सीन तो और भी ज्यादा मजेदार है। आहद, जो कि शेरजमान का बहनोई है, वो भी शेरजमान की तरह दिन में ही अमेरिका जाने के ख्वाब बुन रहा है और कहता है कि जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो एलोन मस्क को भी हरा कर आऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि आहद अमेरिका में ही किसी फ्रॉडिये के हाथ चढ़ जाएगा या फिर शेरजमान की किसी साजिश का शिकार होगा और फिर बर्बाद होकर मुंह लटकाते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरेगा, जिस पर इसका बाप बदर और भाई फाहद जूतों से इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों, चचा बदर, जो कि पहले ही लालच जैसी बीमारी का शिकार है, वो आहद की डॉलर्स वाली बात को सीरियस लेता है और वो भी इस ड्रामे में जितने भी पागल हैं इनमें शामिल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम मजीद देखते हैं कि शेरजमान, जो कि आहद और चचा बदर के खून का प्यासा है, और वो आहद को हलाशेरी देते हुए कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तुम्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से अब तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे शेरजमान की कोई सोची समझी चाल लग रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि शेरजमान एक एक्शन हीरो की तरह एंट्री मारेगा और एक ही झटके में सुल्तान राही की तरह अपने चचा और कजनों को नेस्तो नबूद कर देगा, मगर यहाँ पर शेरजमान शतरंज की चाल चलने वाले हैं। दोस्तों, शेरजमान अब इन तीनों बाप बेटों के दरमियान फूट डलवाने का बंदोबस्त कर रहा है ताकि जब ये तीनों लोग आपस में लड़ लड़कर हलकान हो जाएंगे तो फिर मैं इन पर अपने मरहूम बाप जमान का बदला लूंगा और एक ऐसा हमला करूंगा जिससे ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, हम इस एपिसोड में मजीद देखते हैं शेरजमान अपने मकसद में कुछ न कुछ कामयाब भी हो गया है। आहद और फाहद के पैसों की वजह से लड़ते हुए नजर आते हैं। फाहद कहता है कि तुम मुझसे बड़े जरूर हो, मगर इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है कि तुम इतने ही बड़े बेवकूफ भी हो। तुमने हमारी सारी बेईमानी से इकट्ठी की गई दौलत को लगा दिया, तो यहाँ पर शेर का क्या एहसान है? हम चाहते थे कि तुम शेर का पैसा लगाते, अगर नाकाम भी होते तो शेर को नुकसान होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काका साहब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं और साथ ही साथ अस्पताल के बेड पर वेंटिलेटर पर लेटे हुए अपनी जमीनों का हिसाब भी लगा रहे हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं। फ्रेंड्स, मजाक कर रहा था, काका साईं अब मरने वाले हैं और फूफी ताज हमेशा की तरह अस्पताल में भी ड्रामा क्वीन बनी बैठी हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे और लड़ भी किससे रही हैं? एक रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ से
अब भला डायरेक्टर साहब को चाहिए था कि कम से कम फूफी ताज को ये तो बता देते कि ये डायलॉग डॉक्टर के सामने मारना था। खामखा टेलीफोन ऑपरेटर की जान की दुश्मन बन गई। दोस्तों, अगर फूफी ताज का करैक्टर ऐसी हरकतें ना करे तो इसको ताज बीबी कौन कहेगा। एक तरफ तो वो अपने बाप के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ इसके मरने पर मातम मना रही है। हालांकि ये बात सच है कि फूफी ताज को सिर्फ ये टेंशन है कि जो जायदाद काका साहब ने इसके भतीजे और भाइयों के नाम की है वो अपनी ही जिंदगी में मेरे नाम करके मरे। मगर दोस्तों, इस बार फूफी ताज मुंह की खानी पड़ेगी और काका साईं जमीनों का हिसाब अपने दिल में ही लेकर फरार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कहानी को अगर थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए तो अब फहद और इसके बाप बदर और भाई आहद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आहद का बच्चा जो कि जाया हो चुका है और अब इसकी बीवी जो कि पहले इसके किरदार पर शक करती थी अब इसके साये से भी डरती है और बेइंतहा नफरत करती है। दोस्तों, ऐसे पैसे का क्या करना जो इंसान की जिंदगी में से सुकून को गायब कर दे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह आहद और फहद चचा बदर ये सोच रहे थे कि हम इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शेर को नाको चने चबवाएंगे और इसको इसकी वालिद की तरह मारकर इसके घर और जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और इसके बहनोई को और इनकी बहनों को तलाक देकर घर से निकाल देंगे, क्योंकि शेर एक वह शख्स है जो इन लालची बाप बेटों की ख्वाहिशात के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। बड़ा भाई आहद फहद से कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे नाम का बिजनेस करूंगा, फिर देखना तुम कितनी तरक्की करते हो। और शेर की मां को शक हो जाता है कि ये लोग इतने कामयाब कैसे हो रहे हैं जबकि चचा बदर और इसके बेटे शेर जमाल के टुकड़ों पर ही पलते हैं। फिर भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, जिस पर शेर जमान सर हिला देता है। हालांकि शेर जमान सब कुछ जानता है कि इसके चचा बदर इनके बेटे करप्ट हैं और ये शेर का बाप भी जानता था कि मेरा भाई मेरी पीठ के पीछे कारोबार में से पैसे चोरी करता है और हमें दिन रात लूट रहा है। मगर पता नहीं ड्रामा डायरेक्टर कौन सी बात सोचकर बैठे हैं कि अभी शेर को और लुट जाने दो, फिर इनको बेनकाब करेंगे। दोस्तों, हम इस एपिसोड में देखते हैं कि फजर का बाप इसे कहता हुआ नजर आया कि मुझे तुम पर जब भी तरस आता है और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि जो भी फजर कर रही है तो मेरी बेटी, तो तुम कोई ऐसी हरकत कर जाती हो जिससे मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आया तब ही मुझे शेरजमान तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि जो औलाद अपने बाप को एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार ऐसा करेगी। जिस पर फजर की थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट जाती है और वो शेरजमान पर टूट पड़ती है कि तुम कितने ढीठ इंसान हो, मेरे लाख मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। जिस पर शेरजमान इसे कहता है कि फजर तुम ये कैसी बातें कर रही हो और हमारी मोहब्बत का क्या होगा। तो फजर बड़ी ही बेरहमी से कहती है, बाढ़ में गई हमारी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरा बाप है जिसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हें पांव तले रोंद कर जा सकती हूँ। फजर शेर से कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से इतने दूर चले जाओ कि तुम्हारा साया भी मुझ पर ना पड़े। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजता है और शेरजमान की आंखों में आंसू डांस करते हुए निकलते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं, मगर क्या करें, आंसू तो आंसू होते हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि भाभी लाख समझाने पर भी फूफी ताज अपनी महरूमियों का बदला अपने भाइयों और डॉक्टर फजर से अभी तक ले रही है। दोस्तों, फूफी ताज का करैक्टर बहुत समझने वाला है। मैं और आप ये सोचते होंगे कि फूफी ताज शेर जमान के खानदान से दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ी समझने की बात है। फूफी ताज एक जमाने में शेर के बाप से मोहब्बत करती थी और वो जमान फैमिली का बहू बनना चाहती थी, मगर दोनों खानदानों में जमीन के झगड़े पर लड़ाई हो जाती है और ताज भी बेचारी कंवारी ही रह जाती है। अब फूफी ताज फजर और शेरजमान का रिश्ता नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से जमीन और जायदाद नहीं बल्कि वो मोहब्बत से इतनी नफरत करने लगी है कि अब वो दो मोहब्बत करने वालों को एक साथ नहीं देख सकती।
وہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں نے زمان کی جدائی میں اپنی ساری زندگی گزار دی، بالکل اسی طرح اب ڈاکٹر فجر بھی اپنی محبت سے محروم رہے گی، حالانکہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی نہیں، اس کے بھائی کی بیٹی ہے۔ فرینڈز، تاج بی بی ایک تیر کے ساتھ دو شکار کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ شیر زمان جو کہ ڈاکٹر فجر کی محبت میں پاگل ہے، اسے تڑپاتی رہے گی، اور دوسری طرف وہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتی ہے، اس لیے ان کی اولاد فجر کو زندگی بھر کمواری رہنے کی سزا دلوائے گی۔ مگر دوستو یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا، کیونکہ جہاں تک میری پریڈکشنز ہیں اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے ڈرامے کی سٹوری بالکل چینج ہو جائے گی ہی۔ جی ہاں دوستو، ہم نے نوٹس کیا ہوگا کہ فجر کا باپ اتنی بے عزتی اور ذلت اٹھا چکا ہے کہ وہ ایک بار مرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، لیکن اب وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر ڈاکٹر فجر کی طرف سے دی گئی ذلت کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، جس سے ڈاکٹر فجر کی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، جو کہ صرف اس کے باپ کی رضامندی پر ٹکی تھی۔ دوستو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر فجر یہ سوچ سکتی ہے کہ میرا باپ شیر زمان کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا اور اس نے مجھے معاف بھی نہیں کیا، اب میں اپنے باپ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے شیر زمان کا خون بہوں گی، اور اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے میں شیر زمان کے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ دوستو ہمیں اس ڈرامے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پہلے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آہد فاہد اور بدر کے کرداروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان دولت اور طاقت کے پیچھے اندھا ہو جائے تو وہ اپنے ہی خاندان کے خلاف سازشیں کرنے لگتا ہے، بھائی بھابھی کا دشمن بن جاتا ہے، اور سکون کی بجائے پریشانی اور بربادی اپنے ہاتھ سے خرید لیتا ہے۔ پیسہ اگرچہ ضروری ہے، مگر یہ سکون، عزت اور رشتوں کی محبت کو کبھی نہیں خرید سکتا۔ دوستو دوسرا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے، محبت اور ضد کے فرق سے ملتا ہے۔ شیر زمان کی محبت فجر کے لیے جنون کی حد تک ہے، مگر اس محبت میں ضد اور انا بھی شامل ہے۔ وہ بار بار فجر کو منع کرنے کے باوجود اس کے گھر ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کی خوشی کو اپنی خواہش سے مقدم رکھا جائے۔ اگر محبت میں زبردستی یا ضد شامل ہو جائے تو وہ محبت ہی نہیں رہتی بلکہ خود غرضی بن جاتی ہے۔ دوستو تیسرا سبق عورت کی بے بسی اور اس کے رشتوں کی پیچیدگی سے سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر فجر اپنے باپ کی رضامندی پر انحصار کرتی ہے، وہ چاہے شیر زمان کو پسند کرے یا نہ کرے، مگر باپ کی عزت، اس کے اعتماد کو کھونے کا خوف اس کے سارے فیصلوں پر حاوی ہے۔ یہ ہمیں بات سکھاتا ہے کہ فیملی کے دباؤ اور معاشرتی رواج بعض اوقات انسان کی ذاتی خوشیوں کو کچل دیتے ہیں۔ پھوپھی تاج کا کردار سے ہمیں یہ حقیقت سامنے ملتی ہے، پچھلی محرومیاں انسان کی شخصیت کو زہرآلود بنا سکتی ہیں۔ اپنی پرانی ناکامی اور ٹوٹی محبت کا بدلہ وہ آنے والی نسلوں سے لیتی ہے۔ یہ رویہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ماضی کے دکھوں کو ساتھ لے کر چلنا نہ صرف انسان کو تلخ بنا دیتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ماضی کے زخموں کو بھلا کر آگے بڑھے، ورنہ وہ خود بھی سکون نہیں پاتا اور دوسروں کو بھی چین نہیں لینے دیتا۔ دوستو اس کہانی سے ایک اور اہم سبق ملتا ہے کہ سازش اور دھوکہ وقتی طور پر فائدہ مند ہو سکتے ہیں مگر آخرکار نقصان ہی کرتے ہیں۔ بدر اور اس کے بیٹے وقتی طور پر دولت اور بزنس مین کامیاب دکھائی دیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ ایک دوسرے کے خلاف ڈرے ہوئے ہیں اور عجیب عجیب باتیں سوچ رہے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخر میں یہ لالچ بددیانتی انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرینڈز آخر میں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی سکون، ایمانداری اور رشتوں کی حفاظت میں ہے۔ پیسہ، شہرت یا طاقت انسان کو وقتی خوشی دے سکتے ہیں، مگر اگر دل میں سکون نہ ہو اور رشتے ساتھ نہ ہوں تو سب کچھ بیکار رہ جاتا ہے۔ جی تو دوستو آپ کو ڈرامہ شیر کا لیٹسٹ ریویو سن کر کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے بھائی عدن کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کو ڈاکٹر فجر کی قسم۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ شیر زمان ہسپتال کے چکر کاٹنے پر مجبور ہے اور وہ ہسپتال میں پاگلوں کی ٹیم میں پھر سے شامل ہو گیا۔ دوستو ہم نے دیکھا کہ ایک پاگل شیر زمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی پاگل ہو جو اس ہسپتال میں گھوم رہے ہو؟
तो शेरजमान कहता है इस पागल से, जी हाँ मैं भी पागल हूँ और दीवाना भी, और बड़ी ही हसरत से डॉक्टर फजर की तरफ देखता है जो कि खुद किसी पागल का मुआयना कर रही होती हैं। दोस्तों ये बात सच हो गई, मैं भी पागल, मेरा दिल भी पागल। फ्रेंड्स, ये कैसा पागल है जो अपनी महबूबा को रोज बरोज इसके बाप के हाथों जलील करवाता रहता है और खुद को आशिक भी कहता है। खैर दोस्तों, ये ड्रामा है और मेरी मजबूरी है कि मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड की स्टोरी सुनाऊं। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि शेरजमान दिन में ही तारे देख रहा है और जागते हुए डॉक्टर फजर के ख्वाब देख रहा है। अगला सीन तो और भी ज्यादा मजेदार है। आहद, जो कि शेरजमान का बहनोई है, वो भी शेरजमान की तरह दिन में ही अमेरिका जाने के ख्वाब बुन रहा है और कहता है कि जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो एलोन मस्क को भी हरा कर आऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि आहद अमेरिका में ही किसी फ्रॉडिये के हाथ चढ़ जाएगा या फिर शेरजमान की किसी साजिश का शिकार होगा और फिर बर्बाद होकर मुंह लटकाते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरेगा, जिस पर इसका बाप बदर और भाई फाहद जूतों से इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों, चचा बदर, जो कि पहले ही लालच जैसी बीमारी का शिकार है, वो आहद की डॉलर्स वाली बात को सीरियस लेता है और वो भी इस ड्रामे में जितने भी पागल हैं इनमें शामिल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम मजीद देखते हैं कि शेरजमान, जो कि आहद और चचा बदर के खून का प्यासा है, और वो आहद को हालाशहरी देते हुए कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तुम्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से अब तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे शेरजमान की कोई सोची समझी चाल लग रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि शेरजमान एक एक्शन हीरो की तरह एंट्री मारेगा और एक ही झटके में सुल्तान राही की तरह अपने चचा और कजनों को नेस्तो नाबूद कर देगा। मगर यहाँ पर शेरजमान शतरंज की चाल चलने वाले हैं। दोस्तों, शेरजमान अब इन तीनों बाप बेटों के दरमियान फूट डलवाने का बंदोबस्त कर रहा है ताकि जब ये तीनों लोग आपस में लड़ लड़कर हलकान हो जाएंगे तो फिर मैं इन पर अपने मरहूम बाप जमान का बदला लूंगा और एक ऐसा हमला करूंगा जिससे ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, हम इस एपिसोड में मजीद देखते हैं शेरजमान अपने मकसद में कुछ ना कुछ कामयाब भी हो गया है। आहद और फाहद के पैसों की वजह से लड़ते हुए नजर आते हैं। फाहद कहता है कि तुम मुझसे बड़े जरूर हो, मगर इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है कि तुम इतने ही बड़े बेवकूफ भी हो। तुमने हमारी सारी बेईमानी से इकट्ठी की गई दौलत को लगा दिया, तो यहाँ पर शेर का क्या एहसान है? हम चाहते थे कि तुम शेर का पैसा लगाते, अगर नाकाम भी होते तो शेर को नुकसान होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काका साहब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं और साथ ही साथ अस्पताल के बेड पर वेंटिलेटर पर लेटे हुए अपनी जमीनों का हिसाब भी लगा रहे हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं। फ्रेंड्स, मजाक कर रहा था, काका साईं अब मरने वाले हैं और फूफी ताज हमेशा की तरह अस्पताल में भी ड्रामा क्वीन बनी बैठी हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे और लड़ भी किससे रही हैं, एक रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ से। अब भला डायरेक्टर साहब को चाहिए था कि कम से कम फूफी ताज को ये तो बता देते कि ये डायलॉग डॉक्टर के सामने मारना था। खामखा टेलीफोन ऑपरेटर की जान की दुश्मन बन गई। दोस्तों, अगर फूफी ताज का करैक्टर ऐसी हरकतें ना करे तो इसको ताज बीबी कौन कहेगा? एक तरफ तो वो अपने बाप के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ इसके मरने पर मातम मना रही है। हालांकि ये बात सच है कि फूफी ताज को सिर्फ ये टेंशन है कि जो जायदाद काका साहब ने इसके भतीजे और भाइयों के नाम की है वो अपनी ही जिंदगी में मेरे नाम करके मरे। मगर दोस्तों, इस बार फूफी ताज मुंह की खानी पड़ेगी और काका साईं जमीनों का हिसाब अपने दिल में ही लेकर फरार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कहानी को अगर थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए तो अब फाहद और इसके बाप बदर और भाई आहद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आहद का बच्चा जो कि जाया हो चुका है
और अब इसकी बीवी जो कि पहले इसके किरदार पर शक करती थी अब इसके साये से भी डरती है और बेइंतहा नफरत करती है। दोस्तों ऐसे पैसे का क्या करना जो इंसान की जिंदगी में से सुकून को गायब कर दे। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह आहद और फाहद चचा बदर ये सोच रहे थे कि हम इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शेर को नाको चने चबवाएंगे और इसको इसकी वालिद की तरह मारकर इसके गारो जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और इसके बहनोई को और इनकी बहनों को तलाक देकर घर से निकाल देंगे, क्योंकि शेर एक वह शख्स है जो इन लालची बाप बेटों की ख्वाहिशात के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। बड़ा भाई आहद फाहद से कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे नाम का बिजनेस करूंगा, फिर देखना तुम कितनी तरक्की करते हो। और शेर की माँ को शक हो जाता है कि ये लोग इतने कामयाब कैसे हो रहे हैं जबकि चचा बदर और इसके बेटे शेर जमान के टुकड़ों पर ही पलते हैं। फिर भी इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जिस पर शेरजमान सर हिला देता है। हालांकि शेरजमान सब कुछ जानता है कि इसके चचा बदर इनके बेटे करप्ट हैं और ये शेर का बाप भी जानता था कि मेरा भाई मेरी पीठ के पीछे कारोबार में से पैसे चोरी करता है और हमें दिन रात लूट रहा है। मगर पता नहीं ड्रामा डायरेक्टर कौन सी बात सोचकर बैठे हैं कि अभी शेर को और लुट जाने दो, फिर इनको बेनकाब करेंगे। दोस्तों हम इस एपिसोड में देखते हैं कि फजर का बाप इसे कहता हुआ नजर आया कि मुझे तुम पर जब भी तरस आता है और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि जो भी फजर कर रही है तो मेरी बेटी, तो तुम कोई ऐसी हरकत कर जाती हो जिससे मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आया तब ही मुझे शेरजमान तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि जो औलाद अपने बाप को एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार ऐसा करेगी, जिस पर फजर की थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट जाती है और वो शेरजमान पर टूट पड़ती है कि तुम कितने ढीठ इंसान हो, मेरे लाख मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। जिस पर शेरजमान इसे कहता है कि फजर तुम ये कैसी बातें कर रही हो और हमारी मोहब्बत का क्या होगा। तो फजर बड़ी ही बेरहमी से कहती है बाढ़ में गई हमारी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरा बाप है जिसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हें पांव तले रोंद कर जा सकती हूँ। फजर शेर से कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से इतने दूर चले जाओ कि तुम